Hello dear students, welcome to the class today. So we are carrying on with chapter 6, manufacturing industries. I have told in the previous classes also, one of the very important chapters where the questions are put up in a direct manner. This chapter is simple in a sense that the questions that you get from this chapter are the questions that are based on a very simple methodology. ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो आपको डील करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. You would be able to take these questions very simply and you would be able to answer the question simply. Got it? So with this note, as you all know, yesterday we have completed the topic classification of industries. Got it? So when we are classifying industries into various parts, into various, we have divided it into various parts on the basis of capital investment, on the basis of agriculture, on the basis of different sectors, public sector, private sector, ownership. Got it? ये सारे हमने इसको divide किया था. Now we are discussing these in detail. The first one being the agro-based industries. Got it? Agro-based, agriculture से सारा सामान आ रहा है. Raw materials. All the raw materials are coming from the agricultural sectors. Okay? इसमें क्या क्या आ रहा है agro-based industries में? We will be talking about cotton, jute. These are, क्योंकि खेतों से सामान उठा के रॉ मटेरियल उसके बाद इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं. गॉट इट? सो सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, ओके, शुगर, एडिबल ऑयल, all these. Okay, agricultural raw materials, all the things that are there in the fields, in the agricultural fields, वहां से उठा के directly it is taken to the industries. वहां पे it is this primary materials are changed into secondary. Okay, secondary sector में ले जाते हैं, वहां पे all these changes happen. Agro-based industries में, agriculture-based industries में, the first one that is there is textile. कपड़े जो हम पहनते हैं. And this is the oldest method of, or you can say the oldest ever established industries. Got it? Textile industry जो सबसे पहली industry कभी भी कहीं भी लगी थी. That was textile manufacturing. कपड़ा सबसे ज्यादा important है. तो cotton से कपड़ा जो बना रहे हैं, ये this started on a very ancient basis. काफी पहले ये शुरू हुआ. Okay, and it is a unique position, especially Indian economy में, क्योंकि it is contributing very much, significantly it is contributing to industrial production. All the manufacturing, majorly the manufacturing industries में textile industry hold a very important place. And हर एक तरीके से employment generation, foreign exchange, पैसा बाहर से आ रहा है. Many people are employed in these sectors. ये चीज जो है ये हमको पता चल रही है from the textile industries that are there. Got it? Now what happens is कि employment generation is there, foreign exchange earnings is there, and it is the only industry in the country. सिर्फ यही एक industry है which is self-reliant and complete. किसी पे मतलब it is not dependent on anything. It is self-reliant and complete in the value chain. That is raw material to the highest value added products. एक बारी इंडस्ट्री के
अंदर जब रॉ मटेरियल जा रहा है, then the finished good is coming out. Cotton goes inside and the finished good is outside. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का that is the mode. One diagram is there in your book. I'll be showing you the diagram in the last में आपको diagram दिखाऊंगी, and you all have to make this diagram. Please try to understand. Okay, agro-based industries में the first one comes to be the textile industry. इसके बाद we have the cotton textile. Yes, ancient India में सबसे पहले the ancient most mode of production or ancient mode industries that were there, cotton textiles were produced. हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम वीविंग टेक्निक से कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता था. एंड 18th सेंचुरी के बाद, आफ्टर द 18th सेंचुरी, प्लीज अंडरस्टैंड, कॉटन टेक्सटाइल दैट वाज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द 18th सेंचुरी, हैंडलूम्स वेर देयर. हैंडलूम आ गए थे, ठीक है. हैंडलूम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. तो आप ये समझो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहां से कि डेवलपमेंट हैड स्टार्टेड, और वी कैन टेक डेवलपमेंट इनटू अ डिफरेंट मैनर. ओके, पावर लूम्स केम इनटू यूज एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है, इट स्टार्टेड सफरिंग. क्या होता है, एवरीबडी एंड एनीबडी कैन नॉट इंस्टॉल द पावर लूम. आई एम टॉकिंग ऑफ द वीवर्स. तो इनिशियली व्हेन इट हैज कम, जिस समय ये शुरू हुआ था, in the very beginning, at that time, power loom, when it was introduced, so traditional industries that were there, it has to face a loss. काफी सारी problems हुई. The people, the weavers who were involved into this, and please understand that these textile industries that were there from the very beginning till today, आज तक, many people are involved into in these industries. Employment की बात कर रही हूँ. तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हुई हैंडलूम इंट्रोडक्शन के बाद, स्पेशली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया. मेनी पीपल, आई मीन, क्या हुआ कि उन्होंने हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी को पूरा फिनिश कर दिया. दिस वॉज देयर. एंड दीज ऑल, हमारे यहाँ भी द हैंडवर्क, देखो हैंडमेड गुड्स जो होंगे उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी तो नहीं आएगी ना. मशीन है, मशीन से बनी हुई चीजों की जो फिनिशिंग है, द काइंड ऑफ क्लॉथ और द काइंड ऑफ फिनिश दैट वी गेट आउट ऑफ द मशीन क्लोथ्स, same kind of finesse we won't be getting out of the mill, out of the handmade clothes. Got it? And the first ever textile mill that was established in Mumbai was in 1854. Children, from the GK point of view, it's very important. First textile mill in 1854. कहाँ पे? मुंबई. अभी तो मुंबई हो गया, लेकिन पहले इट वॉज बॉम्बे था ना, तो अभी तो हम इसको मुंबई कह रहे हैं. इसके बाद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री को समझो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. एंड in Britain, in the United Kingdom, there was a demand for these clothes. तो ये क्या हुआ, हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज, बिकॉज द इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, the industries in UK were busy manufacturing the war products. तो उनके यहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, they were facing a setback. उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी. So what did they do? They started procuring all the cotton made goods from India. Indian cotton industries got a boom. Boom means it got a real push forward, not backward, push forward
during the First and the Second World War. Got it? This is how that the Indian textile industries developed. And early years में क्या हुआ, जब शुरू में when the industries were established, cotton textile industry, it was majorly concentrated in Maharashtra and Gujarat. Initially, the textile industry क्योंकि देखो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स हैड डेवलप्ड दोस प्लेसेस ओनली व्हिच वेयर नियर टू द सी. समुद्र के पास जो जगह, भाई कॉटन का सामान है, इफ इट गोइंग फॉर एक्सपोर्ट, अभी भी इफ वी आर लेइंग डाउन एन इंडस्ट्री समवेयर इन मध्य प्रदेश, चलो मध्य प्रदेश लेते हैं, तो वहां से फिर सी पोर्ट तक सामान ले जाना. रिमेंबर व्हाट डिड वी टॉक अबाउट? Ideal location for industry where the market is near. और यहाँ पे what I am talking about is, I am not talking about the local market, I am talking about the international market. So if the material is to be taken to the port के आसपास कहीं कोई जगह पे इंडस्ट्री लगा देंगे ना, it's easy, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बचेगा. Got it? तो initially textile industries were concentrated in and around Maharashtra and Gujarat. ओके, क्योंकि यहां पे भी सी पोर्ट पास में है, गुजरात में भी सी पोर्ट पास में है, पूरा आप समुद्र से घिरा हुआ है ना ये दोनों स्टेट्स. Raw cotton market, transport, accessible port facilities. I told you now, ideal location for establishing or for laying down the industries. Best. Labor आराम से मिल रहे थे महाराष्ट्र में, गुजरात में. महाराष्ट्र में तो you know अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, महाराष्ट्र में when the industries were open, my dear children, lot of labor was required. तो ये आज इतने migrants हैं महाराष्ट्र में, especially Mumbai. These are the migrants from other states who came to work in these industries. अभी आज से 80 साल 90 साल पहले चले गए महाराष्ट्र में, वहां पे इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, तो अचानक से कैसे छोड़ के चले आएंगे? नाउ द पीपल फ्रॉम दोज स्टेट्स से that बाहर के लोग आके और हमारा एनवायरनमेंट खराब कर दिया है. Why are they saying like this? Because initially when the labor was required, महाराष्ट्र में लेबर फैसिलिटी कम पड़ गई थी. तो ये बिहार, पंजाब, नॉट पंजाब बट बिहार, झारखंड, उड़ीसा, from these places, Bengal, from these places people started migrating to Maharashtra. Lot of work has been done in Maharashtra. काफी सारा काम इन लोगों ने किया, the labor were involved. तो industries which has close links with agriculture and provide a living to the farmer, cotton wool pluckers and workers, everybody was involved in this production. क्या क्या होता है cotton production में? ginning, spinning, weaving. क्या है ये? These are all the activities through which cotton textile is manufactured. Lot of labor was required. बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, so people migrated. हाँ, ginning, spinning, weaving, dyeing, बहुत lot of work is involved in the cotton manufacturing. कॉटन क्लोथ टेक्सटाइल डिजाइनिंग. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, दिस इज अ बिग मार्केट नाउअडेज, दैट इज द पैकेजिंग. और अभी तो अमेजन आ जाने के बाद ऑनलाइन थिंग्स हैव स्टार्टेड, तो इसका तो बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गया है, इट हैज इंक्रीज्ड. ओके, एंड देन टेलरिंग, sewing,
सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, सारी चीजें लेके चलो. So we have demand and support many other industries. ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, these are supporting the other industries as well. कौन सी इंडस्ट्रीज है? केमिकल्स है, डाइज है, पैकेजिंग है, इंजीनियरिंग वर्क है. Means on the textile industries, the textile mills that are there, that are supporting other industries as well. और इसको हम क्या कहते हैं? What do we call it? This is called as agglomeration economy. Remember शुरू में हमने पढ़ा था कि one industry on which other industries are depending, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? We call it as agglomeration economy. Got it? And these industries that are there, these industries that are creating materials, engineering work, मशीनें हैं, मशीनें कभी कभी खराब भी हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कौन चाहिए? Engineers are needed. Got it? तो अभी भी till date, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तो हमने फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स के बारे में बात की, बट आज तक टिल डेट स्पिनिंग का मेन सेंटर इज महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु. स्पिनिंग सेंटर्स, रिमेंबर दीज स्टेट्स. आपका मैप कॉपी है इस चैप्टर में. महाराष्ट्र, गुजरात and Tamil Nadu. Got it? तो वीविंग क्या है कि देखो, स्पिनिंग, कपड़ा जो बुन के तैयार होता है, दैट इज हैपनिंग इन दीज स्टेट्स. लेकिन वीविंग इज सेंट्रलाइज्ड. कहां पे है? वीविंग इज डिसेंट्रलाइज्ड. कहीं पे भी, एनीवेयर वीविंग इज हैपनिंग. स्पिनिंग, जो धागे बन रहे हैं और जो कपड़े बुनाई हो रहे हैं, ये इन सेंटर्स में है. इट इज हैपनिंग इन दीज स्टेट्स, बट वीविंग इज डिसेंट्रलाइज्ड. अलग अलग देशों, अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं. ओके? एंड ट्रेडिशनल स्किल्स, वीविंग इज हैपनिंग एट डिफरेंट प्लेसेस. धागे कहीं पे अगर बन गए, कॉटन से धागा बन गया, स्पिनिंग हैज हैपेंड. नाउ वीविंग, अलग अलग तरीके के कपड़े अगर बनाने हैं, तो इट हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड. महाराष्ट्र में अलग तरीके का कपड़ा बन रहा है, यूपी में इट्स डिफरेंट, बिहार में इट इज डिफरेंट. यस, ऐसा इसलिए है. यू माइट बी थिंकिंग व्हाई? बिकॉज टू इनकॉर्पोरेट द ट्रेडिशनल मेथड ऑल्सो, ट्रेडिशनल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ना. तो ट्रेडिशनल चीजों को भी हमको इंपॉर्टेंस देना है. कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इनटू वीविंग. तो बनारसी अलग है, बंगाली अलग है, उड़िया अलग है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और द ट्रेडिशनल आर्ट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द क्लोथ. तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टाइल्स में वीविंग होती है. ओके? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड एंड वीविंग इज decentralized. Every state has got its own weaving techniques, its own weaving styles. अलग अलग स्टेट्स में हो रही हैं. ओके? तो आप ये चीज अभी हमने कहा, वीविंग सप्लाईज दैट आर हैपनिंग, फैब्रिक इज देयर. एंड कभी कभी क्या होता है कि कपड़ा बहुत अच्छा नहीं होता है या धागे बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वीविंग स्टाइल्स कैन नॉट, हो सकता है उतना अच्छा ना हो. माइट बी इट इज नॉट दैट अप टू मार्क. तो वीविंग जो होती है, इट हैपेंस बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर वीविंग. मिल्स हैं बहुत सारी. तो हैंडलूम है, पावर लूम है, मिल्स है, वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीविंग स्टाइल्स आर इनकॉर्पोरेटेड.
तो हैंड स्पन, और सबसे पहला जिसमें अब यहां पे हम जो बात करेंगे, हाउ डिड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गेट अ बूम बिकॉज ऑफ द वन वर्ड, आई वुड राइट इट इन कैपिटल, ये नाम के साथ एक नाम बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके घर के आसपास भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे यू विल फाइंड गांधी आश्रम, खादी गांधी आश्रम। ओके, खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री। एंड गांधी जी यूज्ड टू से ना, यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना काम अपने आप करना है। सो गांधी जी he emphasized on the spinning yarn and weaving khadi. Spinning and weaving, धागा चरखे से धागा निकालते हैं, सूत काटते हैं, इट इज अ डिफरेंट टेक्निक, थोड़ा सीखना पड़ता है, ठीक है। चरखा से धागा बना और धागा के बाद अपने ही हाथों से अपना कपड़ा वो बनाते थे जो वो पहनते थे। यस, दैट्स द ट्रूथ चिल्ड्रन, अपने हाथों से अपने लिए वो कपड़ा बनाते थे। राइट फ्रॉम द कॉटन टू द राइट, कॉटन ग्रो तो ऑब्वियसली इट इज हैपनिंग, लेकिन धागा से लेके कपड़ा बनाने तक का काम ही यूज्ड टू डू ऑन हिज ओन। सिर्फ खादी पहनते थे वो, ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनी अदर क्लॉथ, ऑल्दो ही वाज अ वेरी रिच पर्सन। तो अभी क्या है, it is important, why it is important for our country, कि मिल सेक्टर एंड लूमेज, पावर लूम एंड हैंडलूम क्या होता है, why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom। पावर लूम और हैंडलूम से ज्यादा हमको मिल लूम्स को थोड़ा कम रखना है। मोर स्ट्रेस हैज टू बी गिवन ऑन पावर लूम एंड हैंडलूम। यस चिल्ड्रन, एवरीबडी कैन नॉट एस्टैब्लिश अ मिल सारे लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। So it is there, it is very much required that the people who are involved into weaving sector आराम से हैंडलूम से या पावर लूम से वो अपना काम चला पाएं। They carry on their work with the help of power loom and handloom only. Everybody cannot establish a mill, और मिल अगर establish कर भी लिया तो वहां पे वर्कर्स कहां से आएंगे। And India, you know, India has got a big export market. Japan and we are, other than importers of cotton goods, Indian goods are exported in the outside countries, and it is highly in demand. Some of the best quality cotton is coming from India, which is required in other countries. Japan तो हमारे चीजें बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। USA is there, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka, ठीक है। Cotton goods from India are going to these international markets. आप इसी से सोच लो कि how much it is contributing to the national economy. Lot of international, I mean बाहर के बहुत सारे देश हैं who are always keen on buying goods from India. World trade में we have a large share of cotton yarn. Please understand. Export of cotton is happening. Cotton export. ठीक है, yarn. वीविंग को अपनी कर लेते हैं ना, उनके यहाँ पे भी तो पावर लूम्स आर देयर। तो ऑल दीज इंटरनेशनल मार्केट्स आर देयर विच आर मोस्ट वेलकम, विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, तो आप ये सारे ऑल द इंटरनेशनल मार्केट्स दैट आर देयर आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंडियन मार्केट। एंड लार्ज शेयर, वर्ल्ड ट्रेड में हमारी लार्ज शेयर है। स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल लेवल में। Our cotton clothes and our spinning mills are giving competition to the international markets. And weaving, knitting and processing units
बहुत हाई क्वालिटी का yarn they are producing the weaving, knitting and processing units. बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी yarn is produced in the country. बहुत there are some large and modern factories in these segments. The segments which are producing yarn. Okay. लेकिन हमारे यहाँ पे the international market is quite big and we need to give a boost to it. Got it? तो वी विल बी कंटिन्यूइंग इट चिल्ड्रन. एक दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहती थी, प्लस आई वांटेड टू डिस्कस द मैप वर्क. इसमें हाँ, कहां पे वेयर दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, I wanted to discuss that and show it to you on the map. Let's see the map once. Children, just now we were discussing about the spinning factories, the spinning mills, agro-based industries that we have discussed. काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. I told you that I wanted to show you the map work. Of course, I'll be showing it to you. But before that, some things that I really wanted to point it out is the international market. इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर. देखो ये क्या है, वाई आई पॉइंटेड इट आउट इज़ कि हमारे यहाँ के जो धागे हैं, ओके, द यार्न दैट इज़ देयर, जो बार बार यार्न आता है ना, इसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट एक्चुअली इज़ दिस यार्न. कॉटन के बाद जो चीज़ तैयार हो रही है, दैट इज़ इमीडिएटली आफ्टर द कॉटन दैट इज़ प्रिपेयर्ड इज़ यार्न. ओके, तो वीविंग का काम इसके बाद होता है. सो यार्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबल लेवल पे हमारे यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं. ये मैंने आपको 3-4-5 बारी बता दिया है. गॉट इट. तो जस्ट सी दिस मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट, लेकिन स्मॉल यूनिट्स में भी हमारे यहाँ पे यार्न बन रहे हैं. एक तो बिग फैक्ट्रीज आर मेकिंग, बिग पावर लूम्स, बिग प्लेसेस आर देयर, बिग सेगमेंट्स आर देयर जहाँ पे कि यार्न इज़ मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन लोकल मार्केट भी है. इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा ड्रॉबैक, देखो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि लोकल मार्केट के वजह से कभी कभी मिसमैच हो जाता है. बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, मेनी पीपल हु आर टेकिंग दिस यार्न टू द आउटसाइड कंट्रीज, जापान ले जा रहे हैं, यूके ले जा रहे हैं, यूएसए ले जा रहे हैं. तो एक्सपोर्ट कॉटन यार्न मतलब जो सामान बाहर जा रहा है, कभी कभी इनको फैब्रिक जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है. समटाइम्स मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स, ये देखो इट्स मेंशन्ड हियर, एक्सपोर्ट कॉटन यार्न, लेकिन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक. जो लोग गारमेंट बना रहे हैं, जिस क्वालिटी का कपड़ा उनको चाहिए, आज भी हमारे यहाँ पे कभी कभी उस तरीके का कपड़ा नहीं मिल रहा है. तो अभी ये समझने की कोशिश करो दैट वी नीड टू अपडेट. हमारे ये जो मिल्स हैं जहाँ पे यार्न प्रोड्यूस हो रहा है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि अभी ये दिस इज़ अ बिग थिंग कि जिनको गारमेंट बनाना है, जिनको कपड़े बनाना है, दे आर इम्पोर्टिंग द फैब्रिक. बाहर से वो कपड़े लेके आ रहे हैं, तब शर्ट बन रही है यहाँ पे. ये चीज़ हमको होना है. जस्ट सी, यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर केजी, लेकिन अगर उसी यार्न का कपड़ा बना के जब सेल कर रहे हैं तो 800 पर केजी आ रहा है. तो वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज, फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट. इसीलिए वैल्यू एडिशन के बाद ये 85 पर केजी वाला सामान जो हो वो 800 पर केजी हो जाता है. गॉट इट. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट इज मेंशन्ड हियर. एंड वी नीड टू वर्क ऑन आवर वीविंग सेक्टर. वीविंग सेक्टर पे थोड़ा सा काम करना है. ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट. काफ़ी सारी चीज़ें हमने सुधार ली हैं, लेकिन बट स्टिल कैसे है ये चीज़, क्या है, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन. एक बारी मैप देख लो. अभी मैप में 3 चीज़ें दी हुई हैं. दिस मैप इज़ ओनली फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल. ये मैप सिर्फ हमको कॉटन बेस्ड ये
it is giving us the major places where these are manufactured cotton, wool and silk. आप ये देख लो यहाँ पे साउथ में से ही शुरू करते हैं ना. 3 places चेन्नई, कोयम्बटूर एंड मदुरई आर देयर कॉटन टेक्सटाइल के लिए. मैसूरू यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन इट्स मैसूर, बेंगलुरु एंड कोलर सिल्क टेक्सटाइल के लिए. लेकिन बेंगलुरु इज ऑल्सो फेमस फॉर वुलन टेक्सटाइल. वो ऊटी ऊटी आसपास में है ना, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे वुलन टेक्सटाइल भी मैन्युफैक्चर हो रहा है. इसके बाद और ऊपर आते हैं, ये बेलागावी है, यहाँ पे भी वुलन सिल्क टेक्सटाइल इज देयर. देन मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉटन, महाराष्ट्र एंड गुजरात, राजकोट, पोरबंदर, उज्जैन, अहमदाबाद, देवास, इंदौर, वडोदरा, all these places, ये जब हो, this is all famous for cotton textile and कुछ जगहों पे woolen textile भी है. लेकिन one thing that is very prominent is silk यहाँ कहीं नहीं है. This is all famous for cotton. दूसरी चीज जो important है, यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे आपको 2 जगह पे सिल्क मिल रहा है इन बंगाल, मुर्शिदाबाद एंड बांकुड़ा. बहुत अच्छी क्वालिटी की सिल्क आती है यहाँ पे. वाई ना, बिकॉज बांकुड़ा सिल्क, आई हैव सीन बांकुड़ा सिल्क, दैट्स वाई. और फिर हमारा प्यारा वाराणसी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको वुलन मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ती है. ठंड के रियली नीड कॉटन इज मिसिंग. वाराणसी में जितना भी कॉटन का गुड्स है, जितने वाराणसी के मर्चेंट्स हैं ना, ये सारे इधर गुजरात से और महाराष्ट्र से लेके आते हैं. ऑल दी कॉटन दैट इज देयर इन द मार्केट. ठीक है. और उसके बाद मेजर ठंडी जगह पे आपको देख लो सारा वुलन का मार्केट है. गॉट इट. तो ये बेटा मैप वर्क आप लोगों को करना है. प्लीज गो थ्रू द मैप वर्क वंस. नेक्स्ट रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास.